Chairman of the session, my fellow speakers, all brothers and sisters present here. Very good evening to all of you. In fact, we are a little bit short of time, and so I will just raise some important points for your deliberation. Also, I would like to thank Shri Pradeep Mahapatra ji, Convention Officer, for giving me this opportunity to share my views with all of you on the topic of universal brotherhood and global peace or world peace. When we talk of universal brotherhood and world peace, we see that there are two phrases, universal brotherhood and world peace. And if we want to correlate them, then we have to understand their meaning and also how, until or unless we ourselves are at peace within ourselves, we cannot think of global peace. Looking at the scenario today of the world, we find that universal brotherhood is the need of the hour. I am talking about the conflict between Russia and Ukraine, or the tension between China and America, or the tension between India and China. When we see all these conflicts and strikes, we feel that there should be some way out of it. We do not want a third world war because it will be a nuclear war. We all know that Russia is ready to use dirty bomb, nuclear bomb, and the whole world, the whole universe will be threatened by it. I am a student of political science of international relation, and we have learned, we teach, and we have realized that man works out of selfishness and greed. These are the two basic characteristics that goad men, people to do their work. We are talking of individuals, we are talking of the states, and so when we will be talking of universal brotherhood, then again we must find what is hidden in it for human beings, for humankind. What selfishness is there in universal brotherhood, even in universal brotherhood for people. आपको लग रहा होगा कि मैं ये क्या कह रही हूँ, एक तरफ हम विश्व बंधुत्व की बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ सेल्फिशनेस, स्वार्थ की बात कह रहे हैं, ग्रीड की बात कह रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मनुष्य कोई भी काम तब तक नहीं करता जब तक कि उससे उसको फायदा नहीं हो, जब तक कि उसका कोई उससे मतलब सिद्ध ना होता। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे चारों ओर वी हैव सो मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स, not only amongst states, amongst communities, but even with our ecosystem we are in conflict. हमारा जो ecosystem है, whether it is rivers, whether it is mountains, whether it is trees, we are in conflict even with our ecosystem. तो जब हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते हैं तो ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड केवल मैन और मैन के बीच का नहीं है, जो मुझे लगता है दिस शुड बी विद आवर इकोसिस्टम विच इंक्लूड्स all living or non-living things which are there, which we all believe are created by God Himself. आज भी जब हम यहाँ पर बैठे हैं तो छठ पूजा की तैयारी हो रही है, और छठ पूजा किसकी पूजा है? प्रकृति की ही पूजा है, सन की पूजा है, रिवर की पूजा है। किस लिए है? जिसकी हम पूजा करेंगे उसको स्पॉइल नहीं करेंगे, उसमें हम गॉड का रिफ्लेक्शन देखेंगे। स्वामी विवेकानंद हो या गुरु नानक हो या डॉक्टर एनी बेसेंट हो, जितने भी सेंट्स हुए, उन्होंने सब ने ये बात कही कि हमें अपने आप को ही सामने वाले में देखने की जरूरत है। जब हम खुद को सामने वाले में देखेंगे, जब हम ये मानेंगे कि जो परब्रह्म है, जो
सुप्रीम ब्रह्म है वो हमारे अंदर भी है, एंड दैट सेम सोल, सुप्रीम सोल इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इवन इन ट्रीज, इन रिवर्स एंड इन ऑल अदर ह्यूमन बीइंग्स। तब हम क्या करेंगे? तब हम उसके साथ मिलकर रहने की कोशिश करेंगे, न कि उसको नुकसान पहुंचाने की। आप सब लोगों ने देखा होगा कि बिल्डिंग्स में सीढ़ियों पर, स्टेयर्स पर स्पेशली पीपल टेंड टू स्पिट, और इसलिए मैंने कई जगह पर देखा कि वहां पर कुछ ऐसे पोस्टर्स, कुछ ऐसी पिक्चर्स लगा दिए जाते हैं जो सेक्रेड हैं, और सेक्रेड है इसलिए हम उनको खराब नहीं करते हैं, गंदा नहीं करते हैं। तो द सेम वे वी कैन से कि जब हम सबके अंदर अपने आप को ही देखेंगे तो अपने आप को तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमारे अंदर ईश्वर है और सामने वाले के अंदर भी वही ईश्वर है, और जैसे ही हम ये देखेंगे, जैसे ही हम वी पुट आवर फुट इन हिज और हर शूज, तो हमको ये महसूस होगा कि हम ऐसा करें जो हमारे लिए अच्छा है और उसके लिए भी अच्छा है। तो बहुत जमीन पर लाते हुए, क्योंकि पिछले 2 दिन से हम लोग ये बातें कर रहे हैं, और कैसे हमने देखा था कि ब्रदरलीनेस और अदरलीनेस के बीच में केवल 2 अक्षरों का अंतर है, बी और आर का। आप बी आर हटा दीजिए, ब्रदरलीनेस बिकम्स अदरलीनेस। आज भी सुबह हम लोगों ने वीसी साहब का जब लेक्चर सुना तो भी हमने देखा कि टू बी अ गुड पर्सन, एक अच्छा व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। बहुत हम स्किल्ड हैं, हमें बहुत काम आता है, हम बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं, या हम बहुत अच्छे लेखक हैं, लेकिन इफ आई एम नॉट अ गुड पर्सन तो हमारी जो सोसाइटी को जरूरत है उसको हम पूरा नहीं कर रहे। तो बीइंग अ गुड पर्सन, इसका मीनिंग क्या है? बीइंग अ गुड पर्सन का जो मेरे लिए अर्थ है वो यह कि हम अपने आप को सब में देखें, अपने अंदर ईश्वर को देख रहे हैं, उसी को हम सब में देखें। अगर हम ये करने लगे तो हमारे लिए ये जीवन जीना आसान हो जाएगा। माइक्रो से हम शुरू करें, अपने व्यष्टि के स्तर से शुरू करके हम मैक्रो तक पहुंचे, समष्टि तक पहुंचे, यानी हम जो चीज खुद महसूस करेंगे अपने अंदर, फिर उसको हम बाकी अपनी सोसाइटी, कम्युनिटी, स्टेट के स्तर पर देखें। बिकॉज सीधे हम ग्लोबल लेवल पे वी आर नॉट एबल टू क्रिएट समथिंग एट ग्लोबल लेवल विदाउट क्रिएटिंग इट विद इन आवरसेल्व्स। तो हमें माइक्रो से मैक्रो की ओर जाने की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात, हमारा ही इसमें इंटरेस्ट है, हमारा ही इसमें हित है कि अगर हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड को अपनाते हैं और सबके प्रति, तीसरी चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉट ओनली विद अदर ह्यूमन बीइंग्स बट इवन विद ट्रीज। क्या हमारे दिल में दर्द होता है जब पेड़ कटते हैं? चिपको आंदोलन, जहां स्त्रियों ने पेड़ को अपना मानते हुए, अपना रिश्तेदार मानते हुए, अपना भाई बहन मानते हुए वो उससे चिपक गई, तो क्या हमें दर्द होता है पेड़ के कटने से? क्या रिवर को जब पॉल्यूट किया जाता है तब क्या हमें कष्ट होता है? बिकॉज द रिवर इज चोकिंग, इट इज बिकमिंग ब्रेथलेस। जब पहाड़ काटे जाते हैं, उनको ब्लास्ट किया जाता है एंड दे बिकम एम्प्टी, बैरन, डज इट गिव पेन टू अस? ऐसा लग रहा है कि पेन नहीं होता है, तभी तो हमने इतना सारा जो शरण है सृष्टि का, नेचर का, वो किया है। और उसने हमें जो नुकसान पहुंचाया है, हमारे एंथ्रोपोसेंट्रिज्म ने, एवरीथिंग इज सेंटर्ड टुवर्ड्स ह्यूमन बीइंग्स, एवरीथिंग इज फॉर ह्यूमन बीइंग्स। हम पेड़ों की रक्षा आज करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हम करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो फॉर आवर वेलफेयर, नॉट फॉर द गुड ऑफ द इकोसिस्टम। जिस दिन हम पेड़ को पेड़ के लिए बचाना शुरू कर दें, उस दिन हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करेंगे। और ऐसा करना भी जरूरी है। ऐसा हम लोगों ने अभी देखा कि पिछले 2-3 सालों में जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पानी को कब बरसना चाहिए और कब बरस रहा है, अभी भी गंगा जी में पानी बढ़ा हुआ है, या राजस्थान में रेगिस्तान में पानी बरस रहा है, या जो
वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है, जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो आज से 50 साल के बाद हमें कहाँ ले जाएगी, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। और वो हम कैसे सोच सकते हैं? थ्रू ब्रदरहुड, थ्रू द फीलिंग ऑफ ब्रदरलीनेस फॉर नेचर। नेचर को भारतीय संस्कृति में माँ कहा गया है, तो जब हम उसे माँ मानते हैं तो माँ से ही तो हम सब निकले हैं। और यहाँ ब्रदरलीनेस का जो रिश्ता है वो जुड़ जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को समझें और अपने ही इंटरेस्ट के लिए चाहे इसको हम शुरू में प्रैक्टिस करें, जो आगे जाकर शायद हमको एक अपर लेवल पर लेकर जाए, एंड देन वी विल बी बियॉन्ड सेल्फिशनेस, बियॉन्ड ग्रीड, एंड वी विल we will have the feeling of brotherliness for even nature, for all human beings, for their own sake, not for